हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2. This video is the second part of this chapter. In the first part we have done many topics, and we have started with the basic like what is a cell. Then we continued with tissues and types of tissues, and we are going to continue this chapter in this video also. If you are new on my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a new video. And if you have not seen the part 1 of this chapter, then I have provided the link in the description. You must see it first and then see the second part, because in the first part we have started with the main part of this chapter, so you will understand more better. So let's start with today's video. In the first part of this chapter, what we had done, we had started with tissues. What is a tissue? Then we had done what are the types of tissues, like simple tissue, complex tissue, and then we have started with the animal tissue and plant tissue. So we have started with animal tissue. In animal tissue, animal tissues are of four types. First one is epithelial tissue, and now we are going to continue with connective tissue. In the last video we are done with epithelial tissue and also the subtypes of epithelial tissue like squamous epithelium, glandular epithelium. So now we are going to go on with connective tissue, the second type of animal tissue, and we will complete the animal tissues in today's video. So tissues which join different parts of the body are called as connective tissue. नाम से ही हमें पता चलता है कि ये कुछ कनेक्ट कर रहा है. तो कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या होता है? जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करता है उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू ने बहुत सारे बॉडी को प्रोटेक्ट और फॉर्म तो कर दिया, लेकिन अब वो बॉडी के हवा में लटकेगी नहीं ना. इट विल बी जॉइंड. हु जॉइंस देम? दिस कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस देम. Cells in this type of tissue are loosely arranged with a ground substance to in the free spaces in between. So इनकी cells जो है वो loosely arranged है, मतलब एक दूसरे से बहुत नज़दीक और एक दूसरे से packed नहीं है, free है थोड़ी, और उनके पास free space भी है. The ground substance may be solid, liquid like water or jelly like. So इनका जो ground substance यानी कि यहाँ पर जो cells है in this type of tissue are loosely arranged with a ground substance. यहाँ पर एक ground substance है, वो भी उनकी फ्री स्पेसिस में, मतलब मैंने बोला ना कि एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, दूर दूर है. उनकी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस है वो फिल हुआ है ग्राउंड सब्सटेंस से. और वही ग्राउंड सब्सटेंस एक लिक्विड टाइप भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, या फिर वो एक जेली टाइप भी होता है. So remember that these species are filled with ground substance, and this ground substance may be solid, liquid like water or jelly like. Now let's go to the types of connective tissues. जैसे epithelial tissues के बहुत सारे types थे, जैसे कि squamous epithelium, stratified epithelium, glandular epithelium. वैसे ही यहाँ पर हम connective tissue के भी बहुत सारे types हैं, हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे. हम उनका लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ जानेंगे विद अ डायग्रामेटिक इमेज. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड. अब ब्लड के बारे में तो सब लोग ही जानते हैं, खून. अब ये खून पूरी बॉडी में होता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट भी करता है सब कुछ, और सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है. सब ये ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. यहाँ से इस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कुछ पहुँचाना है तो वो कनेक्ट कर देता है. जैसे कि एक ब्रिज है, हर चीज़ हर जगह एक ब्रिज है वैसे. अब ब्लड का लोकेशन अगर हम आपको पूछा जाए तो होता है क्लोज सर्कुलर सिस्टम. अब वो पूरी बॉडी में ब्लड है तो इसका कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं. पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन अ लिक्विड प्लाज्मा. Blood contains these three types of cells. Remember these three names: leukocytes, erythrocytes and platelets. प्लेटलेट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से डेंजर होता है. और तो प्लेटलेट्स का भी दूसरा रोल होता है. फंक्शन ऑफ द ब्लड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट. हमको पता ही है कि ब्लड का फंक्शन है सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना. फूड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट.
सब कुछ वो ही ट्रांसपोर्ट करता है. Second type of connective tissue is the limb. One important thing you should always remember if any question comes that what is a blood? या फिर blood is a type of dash tissue. It is a connective tissue. Second type of connective tissue is limb. What is the location of limb? All around the cells in the body. So हमारे body में जितने भी cells है उनके आस पास ये lymph होता है. It is a tissue. Tissue called lymph is present in all the cells, all around the cells in the body. तो उसके भी कोई particular location नहीं है. उसका structure कैसा है? Fluid oozed out of blood capillaries, contains leukocytes and liquid ground substance. So इसमें भी ground substance है जो कि दो टिश्यूज के बीच की जगह में है और वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वो स्पेशली बताया गया है. और यहाँ पर फ्लूइड ओज्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि ब्लड की जो कैपिलरीज होती है. ब्लड वेसल्स आपको पता ही होंगे 3 टाइप के होते हैं, आर्टीन्स, वेन्स और आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज. तो उनमें से जो कैपिलरीज होती है उनका जो फ्लूइड होता है उससे बना है ये. एंड दे ऑल्सो कंटेन ल्यूकोसाइट्स जो कि ब्लड में भी होते हैं. इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस. तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे इन्फेक्शन से और ये फाइट करते हैं. अभी थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर टिश्यू. नाउ दिस एरियोलर टिश्यू is located between the skin and muscles around blood vessels. तो जो स्किन है और मसल्स है उनके बीच की जगह में एरियोलर टिश्यूज होते हैं और ये ब्लड वेसल्स के आसपास भी होते हैं. अभी मैंने बताया आपको ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स. तो इन तीनों के आसपास होता है ये. Structure of areolar tissue is different types of cells loosely arranged and supported by jelly-like ground substance and elastic fibers. So ये अलग अलग टाइप के होते हैं एरियोलर टिश्यूज और ये बहुत ही लूजली अरेंज्ड है, मतलब एक दूसरे से एकदम चिपक के हुए नहीं है, थोड़ा सा फ्री है और उनके स्पेस है वहाँ पर. इनके पास भी जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है. इनका जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है और अभी हमने पढ़ा लिम्फ में लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है. एंड इलास्टिक फाइबर्स भी है इनमें. फंक्शन है इनका सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है इनसे. और भी कुछ टाइप्स के 7 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो अभी हमने 3 देखे. फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोस टिश्यू. नाउ दिस टिश्यू इसके नाम से पता चलता है ये हमें कहीं स्टमक में ही पता चलता है. ये स्टमक या इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होगा. तो इसकी लोकेशन है बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होते हैं ये टिश्यूज और वो स्किन के बिलो भी होते हैं. इनका स्ट्रक्चर है सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस. तो इनका भी पास जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है. आई होप कि आपको याद है ग्राउंड सब्सटेंस मतलब क्या. 2 सेल्स इन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उनमें कुछ सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस. तो ये वो जेली लाइक है और सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स. द फंक्शन ऑफ एडिपोस टिश्यू इज इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट्स. तो ये फैट स्टोरेज करता है, हमारे बॉडी में जो भी फैट्स है वो सब को स्टोरेज कर लेता है और एनर्जी सप्लाई भी करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज. Now this cartilage is located in nose, ear, larynx और trachea. इन चारों जगह पे वो होता है. इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के सभी ऑर्गन्स है. स्ट्रक्चर है इसका सेल्स सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस. तो इसका जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस से ये सेल्स इसके सपोर्टेड है और वैसे ही इसका स्ट्रक्चर भी है. फंक्शन है इसका lubricates the surfaces of bones, gives support and shape to organs. सो ये हमारे ऑर्गन्स को शेप देता है, उसे सपोर्ट भी देता है और इट lubricates the surfaces of bones. बोन्स के सरफेस को फिर साफ कर देता है जैसे बोलते हैं. नेक्स्ट द 6th टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बोन्स. अब बोलोगे बोन्स हड्डी वो भी कनेक्टिव टिश्यू है. हाँ, क्यों? क्योंकि बोन भी हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है. हाँ, हाथ कहीं और तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारा हाथ कहीं और
और पैर कहीं और, ऐसा तो नहीं होता। तो ये बोन्स ही है जो हमें यहाँ पर कनेक्ट करके रखते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लोकेशन, वो बोन्स की अब वो लोकेशन आपको तो पता ही है, हर जगह पूरी बॉडी बोन्स से बनी है। तो स्केलेटन हम इसे बोलेंगे, आपने पढ़ाई होगा, भूत होता है स्केलेटन, दैट ऑल यू हैव सीन इन सिनेमास। तो स्केलेटन, a specific structure extending throughout the body. Structure of bones. Osteocytes embedded in solid ground substance made up of calcium phosphate. Very important. A question can come. Bones, osteocytes of bones are made up of dash. Bones के अंदर होता है कैल्शियम, आपने सुना ही होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, जो कि सेल्स है बोन में। So indirectly bone is made up of calcium phosphate. Function of bones: supports and protects different organs, helps in movement. So ये हमारे बॉडी को मूव करने में मदद करता है और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि रिब्स, आपको पता है ये जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, रिब्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो रिब्स भी बोन्स ही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये दोनों को साथ में रखा गया है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। सो टेंडन एंड लिगामेंट्स की लोकेशन एट द जॉइंट्स, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी दो बोन्स को ज्वाइन करने वाले जो भी प्लेस है, जैसे कि हमारा एल्बो, हमारा नी, वो सभी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स टिश्यू से बने हैं। द स्ट्रक्चर, टेंडन्स का स्ट्रक्चर है फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग और लेस इलास्टिक। वो इलास्टिक मतलब ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता। लेकिन लिगामेंट्स का स्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। इनका फंक्शन से हमें मालूम पड़ता है इनका डिफरेंस क्या है। टेंडन्स का फंक्शन है जॉइन मसल्स टू बोन्स, और लिगामेंट्स का फंक्शन है जॉइन टू बोन्स टू ईच अदर। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि टेंडन्स जो है वो हमारे बॉडी के जो मसल्स है उन्हें और बोन्स को ज्वाइन करता है, लेकिन लिगामेंट्स वो दो बोन्स को ज्वाइन करता है। So difference is ligaments join two bones, but tendons join one bone and a muscle. This is the difference. Now let's see the diagrammatic appearance. This is the diagrammatic appearance of all the types of connective tissues. Blood का देख सकते हैं आप, और लिम्फ का थोड़ा सा फ्लूइड जैसा है। एरुलर टिश्यू आपको दिख ही रहा होगा। एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स, बोन का डायग्रामेटिक ऐसा है। और टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का देखिए, वो जो रेड है और बोन है, मतलब मसल और बोन को ज्वाइन करने वाला टेंडन है वो, और दूसरा वाला जो बोन और बोन ज्वाइंट हो रहा है वो है लिगामेंट टिश्यू, क्योंकि दो बोन्स को ज्वाइन करता है लिगामेंट। दिस इज द डिफरेंस ऑल्सो इन द डायग्राम। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू तो हमने अभी भी बोन्स के बारे में पढ़ा, तो मसल्स होते हैं। तो देयर आर मसल्स इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू मूव, एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट दीज मस्कुलर टिश्यूज। Muscle fibers and muscular tissues are formed from special type of contractile proteins. Now what is this contractile proteins? ये contractile proteins हमारे muscles में होते हैं, और ये मस्कुलर टिश्यूज इन्हीं से बने हुए होते हैं और मसल फाइबर्स से, ड्यू टू विच दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज पॉसिबल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन्स है, इन्हीं की वजह से हम अपना हाथ अपने पैर से बेंड कर पाते हैं और फिर ऐसे स्ट्रेच भी कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेच और बेंड कर पाना, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, इज ड्यू टू दिस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, which is present in muscular tissues. Muscular tissues are made up of the long cells of muscle fibers. जो लंबे लंबे cells होते हैं muscle fibers के, और उन्हीं से वो बने हुए होते हैं, और साथ में उनके पास होता है contractile proteins. Muscular movements occurs due to contraction and relaxation of the contractile proteins in these cells. हम लोग अपना हाथ और पैर बेंड कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक जॉइंट है एल्बो, और वहाँ पर हमारे पास जो मसल्स है वो भी बेंड करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है
वो होता है क्यों? क्योंकि एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. प्लीज रिमेंबर दिस नेम्स. अभी हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के भी कुछ टाइप्स हैं. तो पहला टाइप है स्ट्रेटेड मसल्स. सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज उसका ऑपोजिट नॉन स्ट्रेटेड मसल्स. एंड थर्ड टाइप इज कार्डियक मसल्स. तो आपने ध्यान दिया होगा कि कार्डियक मसल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो कि हार्ट, कार्डियक मीन्स हार्ट, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है. स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में हम पहले पढ़ते हैं. Muscles cells are long, cylindrical, multinucleate and have no branches. ये उनका स्ट्रक्चर है. ये मसल्स है जिनके सेल्स लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल है शेप में, और मल्टीन्यूक्लिएट मीन्स उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है इनके सेल्स में, और उनके पास ब्रांचेस नहीं है. सेकेंड, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं. मसल सेल्स आर शॉर्ट, स्पिंडल शेप्ड, uninucleate and have no branches. So इनके सेल्स में सिर्फ एक ही सिंगल न्यूक्लियस है. They are not multinucleate, they are uninucleate. ऑपोजिट है. मल्टीन्यूक्लिएट ऑपोजिट, यूनिन्यूक्लिएट. और ये इनके मसल सेल्स शॉर्ट हुए, एग्जैक्टली ऑपोजिट है स्ट्रेटेड मसल्स से ये. और इनके भी, लेकिन इन दोनों में यही सिमिलरिटी है, दोनों के पास ब्रांचेस नहीं है. कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं. मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड. ये दोनों का ही मिक्सचर. देखो, कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स जैसे सिलेंड्रिकल है और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स जैसे यूनिन्यूक्लिएट है, लेकिन कार्डियक मसल्स में ब्रांचेस है. ये डिफरेंस है. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर स्ट्रक्चर. स्ट्रेटेड मसल्स का स्ट्रक्चर है. देयर आर alternate dark and light bands on these muscles as they are attached to bones. They are also called skeletal muscles. Straight muscles are also called as dash. Important question. Skeletal muscles. ये इनमें alternate dark और light bands है. अब what I mean by dark and light bands, एक light band, एक dark color का band, एक ऐसे strips होती ना, जैसे बहुत सारी स्ट्रिप्स एक साथ, लेकिन एक डार्क फिर एक लाइट, फिर एक डार्क फिर एक लाइट. दैट इज डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन दीज मसल्स एट दे आर अटैच्ड टू बोन्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. वो बोन्स से अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है. दे मूव एज पर आर विल, हेंस दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. इन्हें और एक नाम भी है, इन्हें हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे इच्छा से मूव करते हैं. Voluntary muscles means the muscles which move on our wish. Okay, तो इनके दो नाम है. Straighter muscles are also called as skeletal muscles and voluntary muscles. Non-straighted muscles का structure देखते हैं. Dark and light bands are absent. इनमें नहीं है ऐसे dark फिर light bands ऐसे नहीं है, simple है ये. Not attached to bones. ये bones से भी attached नहीं है, इसलिए skeletal नहीं है. Their movements are not under the control of our will, hence they are called involuntary muscles. Non-straighted muscles का दूसरा नेम है involuntary muscles, क्योंकि इनके जो movements हैं वो हमारे बस में नहीं होते. जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारे eyes का blink करना. They are present in the alimentary canal, blood vessels, etc. Okay? अभी देखते हैं कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर. डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट. अभी इसके पास स्ट्रेटेड मसल्स की तरह डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं. द हार्ट इज मेड ऑफ दीज मसल्स. मैंने आपको बोला था कार्डियक नाम जहाँ पे भी आता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है. तो ये जो हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स से पूरा बना हुआ है. एंड देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. तो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की तरह इनके भी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. देयरफॉर दे आर आल्सो इनवॉलंटरी मसल्स. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली. हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है. कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब एक्सपैंड होना, रिलैक्स होना मतलब वापस छोटा हो जाना. तो वो हमारा हार्ट होता है ये रिदमिकली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दैट इज रिदमिकली. Function of straighted muscles is these muscles bring about movements of arms and legs, running, speaking, etc. So ये muscles हमारे arms और legs का movement करते हैं. हम भाग पाते हैं,
हम बोलते हैं, ये सब कुछ इन मसल्स की वजह से होता है. नॉन स्ट्राइटर मसल्स का फंक्शन, मूवमेंट्स ऑफ आई लिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारे सभी इंटरनल मूवमेंट्स में इनका काम होता है. मूवमेंट्स ऑफ आई लिड्स यानी कि हमारे आई ब्लिंक होना, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनल एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. So these were the types of muscular tissue, and we completed the third type of muscular tissue. But I would like to answer the two questions mentioned in your textbook. That first question is, why do slim persons feel more cold in winter than those who are obese? So the answer for this question is that slim persons have less body fat than those who are obese. Obese means fat. Fat stored in the adipose tissue acts as an insulator and helps to retain heat in the body. Hence, slim persons feel more cold in winter in comparison to obese person. Second question mentioned is, why can bones not be folded? Bones bend हो सकते लेकिन वो fold नहीं किए जा सकते, ये हम सबको ही पता है. तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली बोन्स बीइंग हार्ड, rigid and non-flexible structures, they cannot be folded. This is the perfect reason. So these were the muscular tissues का concept था ये. Now let's go forward to the nervous tissue. Now let's see the diagrammatic appearance of striated muscles, non-striated muscles and cardiac muscles. You can see in striated muscles there are bands, light dark, और फिर वहाँ पर जो न्यूक्लियस मार्क किया है, यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे वैसे डॉट्स है जैसे एक न्यूक्लियस मार्क किया वैसे ही. तो मतलब वो मल्टी न्यूक्लिएट है, वो दिखाया जाता है. नॉन स्ट्रेटेड मसल्स में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही सिंगल न्यूक्लिएट है और वो एकदम सिंपल है, उनमें कोई बैंड्स नहीं है. कार्डियक मसल्स में बैंड्स है, दैट इज वहाँ पर लिखा है स्ट्रेशंस, दैट इज ओनली लाइट एंड डार्क बैंड्स. और न्यूक्लियस आप देख ही सकते हैं मल्टी यूनि न्यूक्लिएट है वो. ओके तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे चौथे टाइप पे जो कि है नर्वस टिश्यू. आपको ये पता ही होगा नर्वस टिश्यू के बारे में. हमने पढ़ा भी था इसके बारे में हमारे 15 चैप्टर में. सो लेट्स लर्न अबाउट इट मोर. ऑफन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द सिंगर बाय merely listening to the song or identified what is being cooked in the kitchen by the mere smell. What helps us do this? So हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने हमें बार हमेशा सिंगर को आइडेंटिफाई किया होगा उसकी आवाज़ सुनकर ही, और कुक कौन सा खाना पक रहा है किचन में उसकी खुशबू सुन के ही आपको पता चल जाता है कौन सा है. तो आपने बहुत बार ऐसे आइडेंटिफाई किया होगा. तो ऐसा करने में हमारी मदद कौन कर रहा है? Nervous tissue enables us to respond to stimuli like touch, sound, odor, color, etc. So जो हमारे nervous tissues है वो हमें मदद करते हैं to respond to stimuli, जो कि हमारा stimuli means outer response like touch, कोई touch करता है तो sound, odor, color, etc. Cells of the nervous tissue are specially made to be some excited and to conduct that excitation from one part to body to other. So the cells of nervous tissue are very specially made to be connected to all the body, and they respond to the external stimulus. Numerous small branched fibers called dendrites arise from the cell body. So इन हर एक सेल का जो सेल बॉडी है उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. नर्वस सेल ऐसे ही होते हैं. Okay, one of the fibers however is extremely long. So it is very extremely long, the cell. It is the largest cell in our body. It is called as the axon. उनका फिर एक पीछे एक लंबी सी ट्यूब जैसा कुछ होता है जिसे हम एक्सन बोलते हैं, जो उनको लास्ट पार्ट तक होता है उनका, और उस एक्सन का एंड होता है एक्सन टर्मिनल, जो कि नर्वस टिश्यू का नर्वस सेल का एक लास्ट पार्ट होता है. फिर द लेंथ ऑफ अ नर्व सेल में इवन बी अप टू 1 मीटर.
Many nerve cells are bound together with the help of connective tissues to form a cord, and the network of nerves spread all through the body. तो वो एक साथ बहुत सारे nerve cells आते हैं एक साथ और एक cord बनाते हैं और बहुत सारी जगहों को कनेक्ट करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं. In most animals, action in response to a stimulus occurs due to the integrated functioning of nervous tissue and muscular tissue. तो हमारा एक्शन रिस्पॉन्ड टू कोई एक्शन हमको किसी ने मारा, हम भी उसको मारते हैं, तो ये काम होता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के कोऑर्डिनेशन से. नर्वस टिश्यू हमें रिस्पॉन्ड करने का मैसेज देता है ब्रेन से और मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्ड करता है. ओके यहाँ पर हम टाइप नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसके हमने पढ़ लिए इसके टाइप्स पहले ही. अब हम लोग जाएंगे प्लांट टिश्यू की ओर. हमने एनिमल टिश्यू के चारों टाइप्स अच्छे से सीख लिए. अभी पहले प्लांट टिश्यू की ओर जाने से पहले ये स्ट्रक्चर एक नर्व सेल का. नर्व सेल इज द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. अब देख सकते हो डेंड्राइट्स ब्रांचेस विद न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, सेल बॉडी, दिस इज द एक्सन, मैंने बोला ट्यूब लाइक थिंग. ओके नाउ लेट्स ट्राई एन एक्सपेरिमेंट फॉर प्लांट अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्लांट टिश्यू. अब यहाँ पर हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं. एज शोन इन द फिगर, place an onion on each gas jar in such a way that its base, that is roots, will remain dipped in water. अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑनियंस को लिया है, हमने उनकी जो रूट्स हैं उन्हें पानी के अंदर डाला है, दैट इज द विल रिमेन डिप्ड इन वाटर, लेकिन बाकी का पार्ट पानी में नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनका रूट पार्ट. Measure and record the length of the roots of both onions on the first, second and third day. हमें दोनों ही ऑनियंस के रूट्स को मेजर करना है और उनका रिकॉर्ड रखेंगे. Measure the length on the fourth day. Cut off 1 centimeter of the roots of onion in flask B. तो हमारे पास यहाँ पे 2 फ्लास्क के A और B. तो जब चौथा दिन आएगा, हमें 3 दिन पहले दोनों को ऐसे ही मेजर करते रहना है. चौथे दिन को हमको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर काट देना है जो फ्लास्क बी, यानी कि बी वाले में जो रूट्स है उसका 1 सेंटीमीटर कट करना है. मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑफ बोथ ऑनियंस फॉर द नेक्स्ट 5 days एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. तो अभी हमें कहा जा रहा है कि हमें अब ये कट करने के बाद भी और 5 दिन तक इनकी लेंथ को मेजर करना है और हमें जानना है कि क्या चेंज हो रहा है, और उनकी ऑब्जर्वेशंस को हमें एक टेबल में लिखना है जो कि आपको मेंशन किया गया है. दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. तो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ अबाउट कि प्लांट टिश्यूज की ग्रोथ. ओके फिर यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि 5 दिन बाद विच ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट्स. वो 1 सेंटीमीटर काटने के 5 दिन बाद था. और कौन सा क्यू विच ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट्स एंड वाई. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी द ऑनियन इन फ्लास्क ए हैज़ लॉन्गर रूट्स एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट रूट टिप. Since 1 centimeter of the growing roots of the onion in flask B were cut off on day 4, they stopped growing. The roots of onion in flask B stopped growing because the meristematic tissue present in the root tips was cut off. So that only I am saying that वहाँ पर root diagram B में कट किया था हमने 1 सेंटीमीटर, और उसी के साथ वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक टिप एट द टिप ऑफ द रूट ऑफ प्लांट्स, वो कट हो गया था और उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है. तो यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेप्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, which is the tissue responsible for growth of the roots. Okay, so as meristematic tissue is the tissue in plants, so this is the first tissue in plants that we are going to learn. As meristematic tissue is present in specific parts of a plant, growth occurs in those parts only. So ये बहुत अलग अलग parts plant के अलग अलग parts में present होते हैं और उन्हीं जगहों पे growth होती है plants की.
Cells of meristematic tissue contain thick cytoplasm, a conspicuous nucleus, and a thin cell wall, and are compactly packed together. So they are very उनके cells जो है वो एकदम packed है, एक दूसरे को एकदम चिपके हुए हैं, और उनमें cytoplasm होता है, and a conspicuous nucleus and a thin cell wall. Vacuoles are usually absent in these cells. In cells में meristematic tissue की जो cells होते हैं उनमें vacuoles की absence होती है. These cells are highly active. बहुत काम होता है इन्हें. To bring about plant growth is the main function of meristematic tissue. According to the location, meristematic tissue is of 3 types. Okay, so meristematic tissue 3 टाइप के होते हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से, और ये टिश्यू है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ टिश्यू. तो यही है हमारे ये प्लांट्स के ग्रोथ के कारण, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर ग्रोथ. तो 3 टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम. दिस इज द फर्स्ट लोकेशन. ये मोस्टली स्टेम्स में होते हैं, एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम. स्टेम भी ग्रोथ होता है ना, स्टेम की ग्रोथ की होती है, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. तो एपिकल मेरिस्टेम ये जो टिश्यू फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रूट और स्टेम पे होता है उनकी लोकेशन, और उनका फंक्शन इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम. ओके, नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, which is at the base of the petiole of leaves and of branches. तो लीव्स के जो पिट्यूल होते हैं, आपको पता होगा लीव्स की एक बीच में एक डंडी होती है लीव्स में, वो डंडी का एकदम ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला पॉइंट उसे हम बोलते हैं पिट्यूल. वहाँ पर है ये टिश्यूज, और इसकी वजह से लीव्स की ग्रोथ होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एट ब्रांचेस, और इसकी वजह से ब्रांचेस की ग्रोथ होती है. सो ब्रांचेस और लीव्स की ग्रोथ कौन से टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टम. लेकिन रूट और स्टेम की ग्रोथ किससे होती है? एपिकल मेरिस्टम से. फंक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम इज ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. इनकी वजह से फ्लावर्स भी फॉर्म होते हैं. थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लैटरल मेरिस्टम. लैटरल साइड्स ऑफ रूट एंड स्टेम. तो अभी ये जो हमारे रूट और स्टेम है उनके लेटरल साइड्स पे होते हैं, और इनका फंक्शन है इंक्रीजेस द गर्थ, दैट इज डायमीटर ऑफ द रूट एंड स्टेम. इनकी लंबाई ये बढ़ाता रहता है, ये इसका काम है लंबाई बढ़ाना रूट और स्टेम की. दीज आर द 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स. So this was the first first plant tissue that we learned in this chapter. With this I end this lecture. If you like my video, then please subscribe my channel. We will continue this chapter in the next part of this chapter and the third part.